We know what is the skew Hermitian matrix. The definition डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप एक्चुअली डेफिनेशन ये कर चुके हैं जहाँ पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर, सो आप वहाँ देख सकते हो. ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which is A, entry from any field, entry taken from some field F, then this is called a skew Hermitian matrix if A transpose conjugate is equal to minus A. मैट्रिक्स A को हम कहेंगे skew Hermitian matrix. Now we are finding the nature of its eigenvalues. So suppose lambda is eigenvalue of skew Hermitian matrix, matrix A. We know there exists eigenvector corresponding to this eigenvalue lambda and satisfy the relation Ax is equal to lambda x. ओके, आप इसका प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं. जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया है उसी तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं. अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको जस्ट शॉर्टकट में ही इसका प्रूफ बताऊंगा. वी नो, पता नहीं यू नो और नॉट, लेकिन we know A is, if A is skew Hermitian, it imply iota A is Hermitian. आप प्रूफ कर सकते हो, इजीली प्रूफ कर सकते हैं ये, ठीक है. A अगर skew Hermitian है तो iota A will be Hermitian. We know the about of eigenvalue of Hermitian matrix. A, if lambda is eigenvalue of A, then we can say iota lambda is eigenvalue of Ia. Corresponding to this eigenvalue I lambda, there exists some eigenvector x and satisfying this relation. But here we know eigenvalue of Hermitian matrix is always real. So since eigenvalue of Hermitian matrix is real, then iota lambda is real. Okay. If iota lambda is real, imply either lambda is 0 or lambda must be purely imaginary. From this conclusion, we say if lambda is eigenvalue of skew Hermitian matrix, then the lambda should be either 0 or purely imaginary. We can say the eigenvalue of skew Hermitian matrix is either 0 or purely imaginary. So some notes. First, the skew Hermitian matrix has eigenvalue 0 or purely imaginary. So we can say eigenvalue of skew Hermitian matrix is of the form iota alpha, where alpha belongs to R.
Alpha may be 0, alpha may be real number. So this is the purely imaginary. If alpha 0, then this will be 0. Now next, the eigenvalue of skew Hermitian unitary matrix are iota and minus iota, or we can say the possible eigenvalues of skew Hermitian unitary matrix are plus minus iota. Of course, this statement is valid for only a square matrix of even order. Okay, prove it like this. The eigenvalues of skew Hermitian and unitary matrix. So given is that a square matrix, suppose A is any matrix of order n. Of course, n should be even. N is even. Okay, then what happened? So given is here A is skew Hermitian and of course A is unitary. Here, if there is no given any field, then we must assume the field is complex number. Okay, field is always field is bigger. जो भी सबसे बड़ा फील्ड होता है हम उसी को एज्यूम करते हैं कि ये एंट्रीज वहीं से लिया गया हो. ठीक है. सो द जब भी हम इसमें आइगन वैल्यूज देखेंगे ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे. A is skew Hermitian, then we know the definition of skew Hermitian is A transpose conjugate is equal to minus A, या कुछ लोग A पावर H is equal to minus A भी लिखते हैं. दिस H हो या थीटा हो या A स्टार हो, A टू द पावर स्टार हो, इस सब का मीनिंग होता है A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, सेम ही होता है दोनों. ठीक है. नाउ एक ये, नाउ सेकेंड इज गिवन A is unitary, it means A theta A is equal to identity. So if we put the value of A theta from this equation, suppose this is 1, this is second, so using 1 in 2, so we have this, we can write A square plus is equal to 0. So we are finding the possible eigenvalue of A. Let lambda be an eigenvalue of A. Lambda square be eigenvalue of A square. We are using the property of the eigenvalues और वहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट लिखे थे, वही आप प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है. Then lambda square is eigenvalue of A square. So here we require lambda value of A square plus I. So if lambda square is the eigenvalue of A square, so lambda square plus 1 is eigenvalue of A square plus I. Okay, so right hand side is the null matrix whose eigenvalue is always 0. So from this, the eigenvalue of A square plus I, which is lambda square plus 1, is always equal to 0. Okay, therefore lambda is equal to plus minus iota. So here we again know the definition of this skew symmetric matrix. If we have a matrix of order n, the entry is taken from the field F, then we say the A is skew symmetric if A transpose is equal to minus A.
we just did the nature of eigenvalue of skew Hermitian matrix. Now skew symmetric matrix. In the skew Hermitian matrix, the all eigenvalues are either 0 or purely imaginary. In the similar fashion, the eigenvalues of skew symmetric matrix is either 0 or purely imaginary. Why so? Because real part of skew Hermitian matrix is skew symmetric matrix, or we can say real skew Hermitian matrix is skew symmetric matrix, or entry from the real field. In the Now with the help of the skew Hermitian matrix, we can say the eigenvalues of skew symmetric matrix is either 0 or purely imaginary. Some notes. First, eigenvalue of skew symmetric matrix are of the form iota alpha, where alpha belongs to real number. Second, eigenvalues of real skew symmetric orthogonal matrix are iota and minus iota. यह प्रूफ सिमिलर प्रूफ है जो हमने स्क्यू हर्मिशियन में किया था, आप इजीली कर सकते हैं. सो नेक्स्ट नोट, देयर इज नो ऑड ऑर्डर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज ऑर्थोगोनल. तो कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं और कुछ नोट्स अगर आगे आएंगे तो कराएंगे. Some problem based on skew Hermitian and skew symmetric matrix. Number 1. If A is real skew symmetric matrix of order 5 and two eigenvalues is iota and 2 iota, then what are the other 3 eigenvalues? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड खुद करने की कोशिश करिए इसको, ठीक है. इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, सो ऑर्डर 5 है, सो इट मस्ट हैव 5 नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, 5 आइगन वैल्यूज होंगे, एंड 2 आइगन वैल्यूज आर आयोटा एंड 2 आयोटा गिवन है. देन व्हाट आर द अदर 3 आइगन वैल्यूज, बाकी आइगन वैल्यूज क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वीडियो को पॉज करके आप खुद बताने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द आंसर. सो नेक्स्ट मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हो इसके आंसर, फिर भी मैं ऑप्शन बना देता हूँ. नंबर ए 5 आयोटा 2 iota, B minus iota minus 2 iota 5, C minus iota minus 2 iota 0, D none of these. Okay, तो आप बता सकते हैं व्हाट आर दी आंसर. सो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 5x5 का है, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, हमें पता है, अभी अभी देखा, द पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, or we can say the always of the form iota alpha. Alpha belongs to
आर। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पॉसिबल आइगन वैल्यूज है। तो टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर 5 होने चाहिए बिकॉज द ऑर्डर इज 5, क्योंकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे डिग्री 5 का पॉलिनोमियल बनेगा तो 5 सॉल्यूशन मिलेंगे x के, तो वही x इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे गिवन क्या है, लैम्डा गिवन दिया है, आयोटा एंड 2 आयोटा गिवन है, बस बाकी कुछ नहीं गिवन है। सो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर comes, they always comes with pair। pair means अगर प्लस आयोटा आ रहा है तो इसके साथ माइनस आयोटा भी आएगा, और -2 आयोटा आ रहा है, सॉरी +2 आयोटा आ रहा है यहाँ पे, तो -2 आयोटा भी आएगा। तो टोटल कितने हो गए अभी, आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा -2 आयोटा 4 हो गए। थर्ड फोर्थ मस्ट बी रियल, ओके, फोर्थ मस्ट बी रियल, क्योंकि जो भी इमेजिनरी नंबर आते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं दे ऑलवेज कम्स विथ पेयर। तो अब हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू बचा विच मस्ट बी 0, वो 0 ही हो सकता है क्योंकि 0 इज in the form of purely imaginary, so it comes alone, so ये सिंगल आएगा 0, so the our answer will be minus iota, -2 iota and 0 which is C। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब नन नहीं लगाना है, आपको सही से इसको एनालाइज करना है, देन आपको इसका सॉल्यूशन देना है। So next problem है number 2, find the all eigen values of matrix A। और A कैसे गिवन है, A equals to, so find all eigen values of matrix A which is of order 4। ठीक है, अब ये देख लेते कहीं स्क्यू सिमेट्रिक या कुछ स्पेशल मैट्रिक्स में से तो नहीं है, हमें दिख रहा है सीधे सीधे दिख रहा है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, बिकॉज आप इजीली देख सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 या AIJ इज इक्वल टू -AJI, ओके, इस तरीके से दिस A इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड A is orthogonal also, ऑर्थोगोनल भी है भाई, आप देख लीजिएगा इसके उसमें इसके लेक्चर में हाउ टू आइडेंटिफाई whether it is orthogonal or not। this is orthogonal also, so if this is skew symmetric and orthogonal, we know the eigen values of A should be iota and minus iota, but here the order of A is 4, लेकिन आइगन वैल्यू हमारे क्या है, क्या होने चाहिए, आयोटा एंड माइनस आयोटा होने चाहिए, इसके अलावा अलग नहीं हो सकता, ये ध्यान रहे। ऑर्थोगोनल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यू होंगे पॉसिबल आयोटा एंड माइनस आयोटा ही होंगे। नाउ द ऑर्डर ऑफ ए इज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4, सो आइगन वैल्यू 4 होने चाहिए, बट हमारे पास अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो अभी अभी हमने बताया द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज कम्स विथ पेयर, ठीक है। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ देयर इज आयोटा देन इट मस्ट हैज माइनस आयोटा, एंड इफ देयर इज आयोटा दिस इट हैज प्लस आयोटा। अगर आप इन दोनों को पेयर एज्यूम कर रहे हो तब भी आयोटा एंड माइनस आयोटा का एक और पेयर आएगा, बिकॉज इसके पास आइगन वैल्यू कैसे होंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा होंगे। इसका ऑर्डर 4 है तो 2 और आएंगे, ऑर्डर 6 होगा तो
अगेन 6 आयोटा एंड माइनस आयोटा अगेन आ जाएगा, तो वो जब भी आएंगे वो पेयर में आएंगे. सो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा, दो बार. इट मीन्स आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आर द आइगन वैल्यू. ये भी गिवन हो सकता है प्लस माइनस आयोटा. ठीक है, सेट के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है. इज सेट ऑफ आइगन वैल्यू ए. ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए. तो एक 6x6 का भी मैं लिख देता हूँ, आपको खुद करना है. ये मैं वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो हम इसमें देख सकते हैं इजीली डिटर्मिनेंट इट 1. अगर आयोटा एंड माइनस आयोटा होता तो तब भी 1, क्योंकि आयोटा एंड माइनस आयोटा ऑलवेज कम्स इन द पेयर. सो मैं यहाँ पे एक नोट्स जैसा बना लेता हूँ. डिटर्मिनेंट ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1. वो 1 आएगा. रियल स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, ये दोनों होना चाहिए, तो ऑलवेज वो 1 ही आएगा. तो और यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इज नॉट 1, नॉट 2. रियल स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स AM of iota is algebraic multiplicity of iota is n by 2 and AM of minus iota is again n by 2. Okay, because we know this is only valid if the order is even. So if n is even, then 2 divide n and 2 divide n, it means the n by 2 can be valid, gives the integer, n by 2 gives the integer. So AM, algebraic multiplicity of I is n by 2 and algebraic multiplicity of minus I is again n by 2. यानी n जितने आयोटा होंगे उतने ही माइनस आयोटा होंगे. यानी ऑर्डर 4 का है तो 2 आयोटा होंगे, 2 माइनस आयोटा के होंगे, यानी आयोटा कॉमा आयोटा माइनस आयोटा कॉमा माइनस आयोटा. अगर 6 होंगे तो आयोटा 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 3 आयोटा एंड माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा होंगे आइगन वैल्यूज. ओके, तो एक प्रॉब्लम सेकेंड, फाइंड द ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ दिस. ओके, तो आप डायरेक्ट फाइंड करने से पहले आप ये जो है ना a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 करने से पहले देख लो कि ये मैट्रिक्स किस फॉर्मेट का है, क्या गिवन है, कैसा है, तो इजीली फाइंड आउट कर दो आइगन वैल्यूज क्या है. ठीक है, हम ये यूज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम देखेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, एंड ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है. इफ इट इज ऑर्थोगोनल एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन आपके हाथ में वो बताना भाई इसके पास कितने आइगन वैल्यूज है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, ट्रेस क्या है. ट्रेस तो खैर दिख ही रहा है, ये सब कुछ आप बता सकते हो इसके बारे में. तो ये तभी स्पेशल मैट्रिक्स को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम गिवन होता है हम उसको रिलेट करते हैं किसी स्पेशल मैट्रिक्स किसी के साथ, देन आंसर देते हैं हम एकदम क्विकली. एंड थर्ड, लास्ट लेक्चर में कराया था जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लेक्चर में. सो आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज 1 एंड -1. ये रियल नंबर है, आप कंफ्यूज नहीं होना. रियल नंबर एलोन भी आ सकते हैं,
ट्वाइस भी आ सकते हैं, थ्राइस भी आ सकते हैं, ठीक है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो रियल सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर 1 और -1। एंड एक ये क्वेश्चन नंबर था 4 इन द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी की उसमें। तो उसमें यहाँ पे मैंने कहा था जब इसको हम दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैले हैमिल्टन थियरम। सो जस्ट किस तरीके से कि हम बताना चाह रहे थे इट्स द आइगन वैल्यू आर आयोटा एंड माइनस आयोटा ऑर्थोगोनल। सो यहाँ पे सिंस इस तरीके से दैट lambda be eigen value of d, okay, lambda be eigen value of d. So from here, from equation third, we can write lambda square plus I equals to 0. So if lambda be the eigen value of d, then lambda square plus 1 is the eigenvalue of d square plus 1. So d square plus 1 equals to 0. So this lambda square plus 1 equals to 0. So from here lambda is equal to plus minus iota. तो हम इस तरीके से भी वहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, आपने कर लिया होगा, होप सो। सो नेक्स्ट में हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, देन उसके बाद रैंक मल्टीप्लिसिटी थियरम करेंगे, ओके, उसका यूज हम करेंगे, देन आएगा कैले हैमिल्टन थियरम।